آفیسر ایسوسی ایشن نے ڈاؤن گریڈنگ سسٹم پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈی آر ڈی او کے ملازمین تنظیم کے لیڈروں نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ملازمین تنظیموں نے ڈی آر ڈی او کے 58 لیبارٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ناانصافی کا الزام لگایا ہے۔ ٹیکنیکل آفیسرز ایسوسی ایشن نے حیدرآباد کے کنچن باغ میں واقع ڈی آر ڈی او کے دفتر میں 9 اور 10 جنوری کو سلسلہ وار بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سی پی آئی نے حکومت پر محبوب نگر پارلیمنٹ بس حادثے کے متاثرین کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سی پی آئی کے سابق رکن پارلیمنٹ عزیز پاشا کا کہنا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ بس حادثے کے متاثرین کو جمہوری انداز میں احتجاج کی اجازت بھی نہیں دے رہی ہے۔ عزیز پاشا نے کہا کہ بس حادثے کے متاثرین جے اے سی کی جانب سے چلو اسمبلی احتجاج کو ناکام بنا کر پولیس نے جمہوریت کو پامال کیا ہے۔ سی پی آئی کے بینر تلے پارلیمنٹ بس حادثے کے متاثرین نے ایبٹس پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دیا۔ We want justice. We want justice. ఎంత ముఖ్యమైన సమస్యకి గవర్నమెంట్ లేకుంటే చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అంత లైట్ తీసుకుంటున్నారు. సో మేమేంటంటే ఇక్కడ పోవడానికి వీల్లేదు. పోలీసు వాళ్ళు చెప్పవచ్చు మీకు విడుదల చేస్తామని. మేము ఆ విషయం గురించి ఇక్కడ వచ్చి ఒక చిన్న నాటకం చేసి పోవడానికి కాదు, ఇది సీరియస్ గా తీసుకుని మేము గవర్నమెంట్ కు చెప్పేది చీఫ్ మినిస్టర్ కి ఏంటంటే ఈ విషయంలో పరిష్కారం మార్గం చూపించాలి, వాళ్ళకి తొందరగా అరెస్ట్ చేయాలి. అట్లనే బాధితుల గురించి ఈ సబ్స్టాన్షియల్ కంపన్సేషన్ మీరు డిక్లేర్ చేయాలి, మనతో మాట్లాడాలి. اس سے قبل پارلیمنٹ بس حادثے کے متاثرین سے وزیر اعلیٰ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ سے ملنے کی پارلیمنٹ بس حادثے کے متاثرین کوشش کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیلگو فلم سٹار ادے کرن کے حیدرآباد کے راگڈا میں واقع شمشان گھاٹ میں آج آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ٹالی ووڈ کی اہم ہستیوں نے نم آنکھوں سے اپنے ساتھی کو ودا کیا۔ اس سے قبل ادے فلم چیمبرز میں مداحوں اور دوست احباب نے ادے کرن کا آخری دیدار کیا۔ یاد رہے کہ اتوار کی رات کو ادے کرن اپنے مکان میں مشتبہ حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ اس سلسلے میں بنجارہ ہلز پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ حکومت سماج کو ناخواندگی سے پاک بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، لیکن اس کا خاص فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ محبوب نگر ضلع میں اب بھی تقریباً 80,000 سے زائد بچے اسکول سے دور ہیں۔ اس بات کا انکشاف خود سرکاری رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ سماج کو خواندہ بنانے کے مقصد سے حکومت نے کئی ایک سرکاری اسکیموں کو متعارف کیا ہے۔ مرکزی سطح پر سرو شکشا ابھیان اور ریاست میں راجیو ودیا مشن اسکیم کے علاوہ قانون حق تعلیم کے تحت تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی حکومت نے لے لی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست کا محبوب نگر ضلع تعلیمی طور پر انتہائی پسماندہ ہے۔ یہاں لڑکیوں کی تعلیم کا حال تو انتہائی ابتر ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق تقریباً 84,000 لڑکیاں اب بھی اسکولوں سے دور ہیں۔ ضلع میں 630 ہائی اسکول ہیں، جس میں 4,61,000 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں طالبات کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 5ویں جماعت کے بعد لڑکیوں میں ترک تعلیم کا رجحان سب سے زیادہ ہے۔ ضلع کے کلکٹر نے بھی لڑکیوں کے ترک تعلیم کا اعتراف کیا، تاہم کلکٹر نے یقین دلایا کہ ضلع میں ناخواندگی کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی اسکیموں پر సంజీద్గి से అమలు किया जा रहा है। గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వచ్చేటట్టుగా చేయడం అనేది కూడా ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। దీనికి కేజీబీవీలు మన దగ్గర 65 ఉన్నాయి। అదేవిధంగా మోడల్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక 40 శాంక్షన్ అయినాయి, ఇప్పటికీ 7 ఉన్నాయి। సో వీటన్నిటిని ఆధారంగా తీసుకుంటూ ఎక్కువ మంది గర్ల్ చిల్డ్రన్ స్కూల్కి ఎన్రోల్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం। మనకి మైగ్రేషన్ వల్ల కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ ఉంది। మైగ్రేషన్ని తగ్గించి లేక మైగ్రేట్ అవుతున్న పెద్దలతో పాటు పిల్లలు వెళ్లకుండా చూడడం కోసం మనం హాస్టల్ వసతి కూడా కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। కొత్తగా ఇప్పుడు మనకి 5 ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్ వచ్చినాయి। పూర్వం ఒక 4 ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్ కట్టాం। మనం స్లోగా మోర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్ కట్టుకుంటే చాలా వరకు కూడా ఆడపిల్లలు ఇక్కడే ఉండి చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది। దీనికి గల ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి। जिले में नाखवानगी की शरह भी सबसे ज्यादा है, जबकि खवानगी की शरह सिर्फ 40% है। जिले के गट्टू मंडल को मुल्क में सबसे ज्यादा नाखवानदा इलाका बताया गया है। मकामी रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है
कि जिले में रोजगार के मौके न होने से लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं। ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఈ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్స్ అని ఉన్నారు. ప్రతి మున్సిపాలిటీ ఏరియా లోపల కనీసం మినిమం 3 నుంచి 400 500 మంది పిల్లలు బడి బయట తిరుగుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా పసరగాడికి పిల్లలు, తర్వాత ఈ బెగ్గింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు, ఎవరైనా అడుక్కునే పిల్లలు ఉన్నారు. తర్వాత ఈ ర్యాక్ పిగ్గర్స్ అని కొంతమంది ప్రతి మున్సిపాలిటీ ఏరియా లోపల చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అంటే ఈ అర్బన్ ఏరియా లోపల ఈ యొక్క బడి బయట ఉన్న పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళని కరెక్ట్ గా లెక్కలు తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. दूसरी जानिब महबूबनगर जिले में आला तालीम के मौके भी कम होने की वजह से जिले के नौजवानों को हुसूल तालीम में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। टीटीवी न्यूज महबूबनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इकनॉमी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में अमन सुकून कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने आवाम से दरख्वास्त की है। संक्रांति त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ आने पर पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि माहौल को खराब करने वालों को मोहब्बत से समझाया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता ईद और त्यौहार के मौके पर हैदराबादियों ने मोहब्बत और भाईचारगी की मिसालें पेश की हैं। मुल्क भर में हक़ रायदही के मुतालिक नौजवानों में शऊर बेदार करने के लिए एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इंजीनियरिंग तलबा के एक ग्रुप ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के मकसद से इंक योर वोट नामी मुहिम शुरू की है। किस तरह चलाई जा रही है ये मुहिम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिला वारंगल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने नौजवानों को वोट की अहमियत से वाकिफ कराने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरिंग के चंद तलबा ने एक ग्रुप बनाया है। तलबा के इस ग्रुप ने इंक योर वोट नामी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत ये ग्रुप मुल्क के मशहूर यूनिवर्सिटीज का दौरा कर रहा है। तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबात को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये ग्रुप यूनिवर्सिटीज में अपना एक बैनर लगाकर हक रायदही से मुताल्लिक शऊर बेदारी कर रहा है। इतना ही नहीं, प्लेस टू वोट के तहत इस ग्रुप की जानिब से बैनर पर तलबा से अंगूठे का निशान लेकर वोट डालने का अहद करवाया जा रहा है। इंजीनियरिंग के तलबा इंक योर वोट की मुहिम की कामयाबी पर मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। చాలా మంది యూత్ ఓట్ వేయట్లేదు అన్నది జనరల్ గా టాక్ వచ్చింది. సో వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ ఒకటి పెట్టి మేమే ఒక ఇలా చెప్తే గనక వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోయి అట్లీస్ట్ వాళ్ళకు ఐడియా వస్తుంది తొందరగా చేయడానికి. ఆల్మోస్ట్ 90% కాలేజెస్ అన్ని కవర్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ కొంచెం దీని గురించి తెలిసేలా చేశారు. సో దట్ అట్లీస్ట్ వేరే కాలేజెస్ వాళ్ళ ఫెస్ట్ లో కూడా ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ ఒకటి తీసుకొని మన యూత్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ లైక్ ఓటింగ్ అలాంటివి పెంచడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది.
సో దీనికోసమని మా యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మేము తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ప్లెజ్ యువర్ ఓట్. దీనికోసమని మేము వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరితో యాజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ మేము వీళ్ళతో ప్లెజ్ చేపిస్తున్నాము, ఓట్ చేస్తామని. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తాము ఫర్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్. దీనివల్ల వీ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, పోలీస్ ऑफिसर्स, एवरीवन. इस शऊर बेदारी मुहिम के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 3000 तलबा ने वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल करवाए हैं. इस ग्रुप ने अब तक आंध्र प्रदेश के 20 कॉलेजों में ये मुहिम चलाई है और 15,000 से ज्यादा तलबा ने अपने हक राय दही इस्तेमाल करने का अहद किया है. आइंदा आम इंतखाबात से पहले ये ग्रुप आंध्र प्रदेश के 50 से ज्यादा कॉलेजों में ये मुहिम चलाने का मंसूबा बना रहा है. तलबा और नौजवान भी इस मुहिम का खैर मकदम कर रहे हैं. It's nice. Actually, consulting all the students in vote, it's very good. Saying everyone about it, it makes everyone helpful. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के असातिज़ा भी इनकी और वोट की कामयाबी पर मुसरत का इजहार कर रहे हैं. एनआईटी के असातिज़ा और तलबा को उम्मीद है कि इस मुहिम के जरिए नौजवानों को अपने वोट की अहमियत का पता चलेगा. ईटीवी न्यूज, वरंगल. तकनामी में फिलहाल इतना. एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर. आदाब. औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर. देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी. खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर. देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा. एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे. दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया. जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर. दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान. तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर. ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट. सस्ता नहीं सबसे अच्छा. मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित.
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। सोपोर में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच एनकाउंटर, 1 ASI हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। फाल्टेंगुनार के बाशिंदे बर्फबारी से बुरी तरह मुतासिर, जिला इंतजामिया ने जल्द अज जल्द बुनियादी सहूलियात फराहम कराने की कराई यकीन दहानी। और रियासत भर में गुरु पूरब की तकरीबात, अमन और खुशहाली के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। और सबसे पहले बात करेंगे सोपोर एनकाउंटर की, जिसमें मिलिटेंटों का सामना करते हुए एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया जबकि 3 जख्मी हो गए। हलाक हुए पुलिस एहलकार की शिनाख्त ASI कफील अहमद मीर के तौर पर की गई है। एनकाउंटर सोपोर के छनखुन इलाके में हुआ। पुलिस को मुसद्दिका इत्तलात मिली थी कि कुछ एक कैटेगरी के मिलिटेंट जिनमें मुजी मौलवी भी शामिल था अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में मौजूद है। पुलिस जैसे ही इलाके में पहुंची, मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग कर दिया, जिससे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उधर जख्मी पुलिस एहलकार कफील अहमद मीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीनगर में इंतजामिया ने शहीद कफील अहमद मीर को खिराज अकीदत पेश किया। कफील अहमद की लाश को उनके आबाई मुकाम भेज दिया गया, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कश्मीर रेंज के IGP AG मीर का कहना है कि मिलिटेंटों की तलाश जारी है। देखिए, आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली मिलिटेंट प्रेजेंस की छानखन सोपोर में, और उस बेसिस पे एक कार्डन इमीडिएटली वहां पुलिस पार्टी चली गई और कार्डन लेक किया। और कार्डन लेक करते हुए सबसे पहले मिलिटेंट जो वहां प्रेजेंट था उसने कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद फायरिंग की, जिसमें हमारे 4 जवान वो जख्मी हो गए इनिशियली। उसमें से एक जो ऐसे हमारे कफील साहब उन्होंने शहादत पाई। रियासत जम्मू कश्मीर में नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के लिए काबीनी सब कमेटी ने नायब वज़ीर आला ताराचंद की क़यादत में आज डोडा का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी अंजुमनों ने कमेटी से डाक बंगले में मुलाकात की। बेशतर वफूद ने डोडा खित्ते के 3 अजला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के लिए अलहदा पहाड़ी सूबा या अलहद व कारगिल तर्ज पर खुद मुख्तार चनाब वैली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम का मुतालबा दोहराया। डोडा के मेंबरान कानून साजिया खालिद नजीब सोहरवर्दी व गुलाम मोहम्मद सवरी ने डोडा खित्ते के लिए अलहदा इंतजामी यूनिट तश्कील देने के लिए दलाइल पेश किए। इनके हमरा रियासती वज़रा श्यामलाल शर्मा, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अकबर लोन, अजय सिद्धूतरा और मीर सैफुल्ला भी मौजूद थे। चनाब वैली बहुत बड़ा एरिया मिजोरम स्टेट से बहुत बड़ा है और मणिपुर स्टेट का आने का मकसद है। तो कैबिनेट सब कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए बनाई गई थी मुस्ताक गनाई रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज टूट करके उस कमेटी की रिपोर्ट को भी एग्जामिन कर रहे हैं और उसके अलावा जो कोई जरूरी डिमांड्स लोगों की छूट गई हैं वो भी हम तमाम पार्टीज को, सिविल सोसाइटी के लोगों को मिल रहे हैं कि वो भी हमें बताएं, उनको भी हम एग्जामिन करें। और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हैं वो रियासत में कायम किए जाएं, क्योंकि हमारी रियासत एरिया वाइज बहुत बड़ी रियासत है और जहां बहुत पहाड़ी एरियाज हैं, मुश्किल एरियाज हैं, जहां लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, अपने तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार को मिलने के लिए, DC को मिलने के लिए। तो इसलिए ये आज हमारा यही मकसद आने का। उधर काबीना सब कमेटी के डोडा दौरे पर अपने सरपंचों और सिविल सोसाइटी ने तहफुजात का इजहार किया। सरपंचों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से नए यूनिट्स के कयाम के लिए शुरू की गई उछलकूद बेमायनी है। क्या हमें कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं कि ऐसा न हो कि हम लोगों के साथ यहाँ के इस अरेस्ट वाले
ये जो हमारा टेरर डिस्ट्रिक्ट है, एक किस्म का फरफरंग एरिया जो है, यहाँ के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो, जो कि अभी कई लोगों ने यहाँ पे उसके खदशात का इजहार किया कि ऐसा ना हो कि वो एक मुहावरा है कि दो मुलाओं में मुर्गी हराम, ऐसा ना हो जाए। हम लोगों के हकूक जो है इलेक्शन से पहले हमको मिलने चाहिए। अगर इस किस्म का हमें कोई ऐसे सिम्टम महसूस हुए कि इन हमारे जो ये फैसले तो यहाँ की बागोई राय हम जो है वो फौरी तौर पर फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बहुत बड़ा एक इनकलाब होगा और बहुत बड़ी एक तब्दीली जो है इस तरह जमीन पर आ जाएगी। जम्मू में आज साधुओं के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजी साधुओं का कहना था कि हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि श्री अमरनाथ जी जमीन तनाजा 2008 मामले में जितने अफराद शरीक थे उनके केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत इन लोगों के खिलाफ ताजा केस दायर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया था कि आंदोलनकारियों पर किसी प्रकार का कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाएगा, ये सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है और लोगों पर कानूनी शिकंजा कस के कोर्ट में चालान पेश कर रही है। BJYM के कारकुनों ने आज जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद अहमद किचलू को उमर अब्दुल्ला वजारत में फिर से शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत किश्तवाड़ फिक़ेवाना फसाद की मुकम्मल जांच कराने में नाकाम हो चुकी है। एहतजाजियों ने यह भी कहा कि जस्टिस गांधी ने मुकम्मल तौर पर इस केस की जांच नहीं की और जल्दबाजी में किचलू को क्लीन चिट दे दी गई। और हमारे कम से कम भी 100 के करीब दुकानें जलाई गई। उन दुकानों को कोई भी कंपनसेशन नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कोई भी मुआवजा, कुछ भी उनकी कार्रवाई नहीं हुई। और लेकिन जस्टिस गांधी, जो कि एक भ्रष्ट गांधी जिसको कहें तो वो कम नहीं होगा, उसका एक कमीशन बिठा के रातों रात किसी तरह से चोरी छिपे रात को उसको क्लीन चिट देकर उसको बेगुनाह साबित करके वापस उसको वो मंत्रालय सौंपा गया। ऑल जम्मू कश्मीर सैफरन ग्रोवर्स एसोसिएशन का कहना है कि सैफरन मिशन को पूरी तरह से लागू न किए जाने से इस सनत से वाबस्ता अफराद को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मुतालबा किया है कि जाफरान की काश्त को मजीद फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। मंडी गवर्नमेंट फीस करान खास कर तिमन तकरीबन गो। उधर जाफरान ग्रोवर्स के नए सदर ने हुकूमत से मांग की है कि वादी में चल रही नकली जाफरान के कारोबार का किले कमा किया जाए। जाफरान ग्रोवर्स के सदर अब्दुल मजीद वानी ने आज जिला पुलवामा के पामपुर इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि सनत में दरपेश मसाइल को हल किया जाए। जमींदार किसान टूरिस्ट मीडिया प्रोजेक्ट तश्कील दितमुत जर यूनिवर्सिटी सन 2010 मज 2010 मज गो यह लागू 3 वरी वो चलान मुसलसल ये जन सन 1960 या 1962 मज नान यह पर कनाल 800 ग्राम 900 ग्राम तान खुशक सली हंद वजह सत वोत यह जीरोस पे तकरीबन वनकस सैनिस एरिया मज नान पर कनाल 60 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम 100 ग्राम तान अमे खतर गवर्नमेंटन इकदाम तुल तम गई मौसर अमे खतर कहें मजीद अर्ज करान गवर्नमेंटन अमे खतर तुल सा मजीद तम इकदाम युत जन यह पैदावार भरपूर दी ताकि अत बेरोजगारी पे यह बेरोजगारी गई सान बचन मज दूर। बेरोजगार नौजवानों के पैकेज को लेकर सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रियासती हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। तारिगामी नौजवानों की तरफ से निकाली गई एक
एहतजाजी रैली के बाद बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर तारिगामी ने कहा कि हुकूमत खिदमत सेंटर्स के नौजवानों के मसाइल की तरफ जल्द अज जल्द ध्यान दे। ग्रास रूट लेवल पर लोगों के जो रेवेन्यू जनरेशन का सवाल है उसमें ये स्कीम काफी मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा दूसरा मकसद ये भी था कि हमारे जो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देख लीजिए जो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, MBA हैं और MCA हैं, यानी काफी पढ़े लिखे हैं। अब ये पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया था इस स्कीम के लिए, ये एक परमानेंट रोजगार का सवाल नहीं था इमीडिएटली, लेकिन एक शुरुआत थी, तो इसको भी सरकार ने एनकरेज नहीं किया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। क्या हो रहा है? कहाँ थे आप? अरे मैं तो मोबाइल की बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी किस्त थी ना, वो मैं भर के आया हूँ। भाई मैंने आज का काम कर दिया। पानी का बिल अदा किया? कर देंगे अदा, इतनी जल्दी क्या है उसमें? ये क्या कह रहे हैं आप? पानी पर ही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। नहाना धोना, खाना पकाना, ये सब तो पानी से ही मुमकिन है। एक दिन में सिर्फ 3 रुपए ही तो पानी का बिल देना होता है, और उसमें भी हम लैतुल्लाल से काम ले रहे हैं। अब कहाँ चल दिए? भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सबसे पहले पानी का बिल ही अदा करके आता हूँ। भाई मैं तो चला पानी का बिल अदा करने के लिए। आप भी अभी के अभी पानी का बिल अदा कीजिए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का आजकल कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011-25-53-25-53। अच्छा, और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे ठंड की ठिठुरन की। जी हां, वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन मुश्किलात का सामना करने वालों में वोल्टिंगो काजीगुंड की आबादी भी शामिल है। यहां के लोगों से किए गए वादे सराब साबित हो चुके हैं और लोग बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। एक रिपोर्ट। वोल्टिंगो नाड कुंड काजीगुंड में 2005 को आए बर्फानी तूफान से काफी तबाही हुई थी और हुकूमत ने उस वक्त यहां के लोगों को हर तरह की सहूलत बहम पहुंचाने का वादा किया था। महकमे देही तरक्की ने तकरीबन 34 रिहायशी क्वार्टर तामीर किए, मगर बाज क्वार्टरों की हालत नागुफ्ताबे है और साथ ही बिजली, पानी और दीगर सहूलियात के रसाई लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। इस वक्त हमें जिंदगी के हर एक चीज की मुश्किलात है। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस 5-6 साल में हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे वो पेंडिंग जो क्वार्टर थे वो भी नहीं बनाए। यहाँ पे पानी की जबरदस्त प्रॉब्लम है, सख्त प्रॉब्लम है। एक दिन पानी आता है, दूसरे दिन हम नाले से कभी कभी कभार हमें पानी जाके लाना पड़ता है। बहुत बड़ी परेशानी है। दवाई का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। जब से तूफान आया 5-6 साल होगी, जो कुछ मकान बने, कम से कम कुछ मकान बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो हमारी तरफ नहीं दी है। तो और हमें पानी की बहुत सख्ती है। 3-4-5 फुट बर्फ है इधर। मकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत ने उस वक्त 54 रिहायशी क्वार्टर तामीर करने का वादा किया था। इस दौरान 3 क्वार्टर्स
मिट्टी के तोदे गिरने के बायस मुतासिर हो गए, जबकि बिजली के